Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 10th November 2021 and I am teaching you chapter number 14 and name of the chapter means of transport. Okay, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video student I discussed with you the second mean of transport, that is known as air transport. Okay, air transport, you can say that air transport is the quickest way to travel. The quickest way to travel is that by air transport. Okay, and but only disadvantage of the air transport is that it is very costly. Okay, now domestic and international both types of flights are available. You can go in any part of the country with the help of this air transport also. And even if you go and want to go in abroad means in different countries, then you can go in different countries with the help of air transport. Okay, so but air transport not carry thousand or more than thousand people at the same time. Okay, less number of passengers can travel in air transport at one time. Okay, and after that student we have discussed that it disadvantage is that it is very costly. Okay, very expensive भी कह सकते हो, very costly. Advantage क्या है? It save your time. It save your time. In a less time you can cover a long distance. Less time में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा distance cover कर सकते हो with the help of the air transport. And some of the air transport which we have discussed, that is the aeroplane. I hope all of you have seen the aeroplanes, helicopters, aircrafts, airships and hot air balloons. Also hot air balloons नाइलॉन का बैग होता है जिसको वार्म एयर से पूरा फिलअप करते हैं, नीचे बास्केट लगी होती है, उसमें 6 to 10 पीपल या 20 पीपल्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, सो these are the different means of air transport that we have already discussed in the previous video. And the first aeroplane was built by the Wright brothers, and they are from which country? They are from America. Okay, they are from which country? They are from America. Okay, now in and now let in today video let's start with the next mean of transport, that is known as the water transport. That is the water transport. So when we are talking about the water transport student, then we can also say that the when we started the chapter means of transport, then we divide the mean of transport into three categories, that is the land transport, air transport and water transport. If it asks or it is asked many time in the examination, which is the oldest mean of transport, so student the oldest mean of transport is the water transport. ठीक है, अगर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें और वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो विच इज द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट? द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, बिकॉज लैंड ट्रांसपोर्ट तभी पॉसिबल हुआ था व्हेन द इन्वेंशन ऑफ द व्हील टेक प्लेस. और वाटर क्या है? वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर. ठीक है, आपने पढ़ा है ना कि द 72% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. ठीक है, सो और एक चैप्टर में हमने 9th या 10th चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है वाटर पे. वाटर अ वंडरफुल लिक्विड, बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सो water transport is the oldest mean of transport. So people in the beginning time also people used to travel from one place to another using logs or small boats on water. ठीक है, ओल्ड टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि फॉर देखो इन ओल्ड टाइम द अर्ली ह्यूमन बींग्स लर्निंग द थिंग्स बाय डूइंग.
ही डोंट हैव एनी नॉलेज, उसके पास कोई नॉलेज वॉलेज थी नहीं। जैसे आज के आपके पास बुक्स होती है आपके हेल्प के लिए, आपके पास टीचर होते हैं, मम्मी पापा पेरेंट्स या ट्यूशन टीचर, और यू कैन see the things and make the concept clear with the help of the Google also, okay, but in the old time उनके पास तो कोई बुक नहीं थी। so what they are learning the early human beings by doing, maybe उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई रिवर हो और उसके रिवर बैंक में, मतलब रिवर के किनारे पे बाई चांस कोई पेड़ हो और दैट ट्री फॉल इन द वाटर, तो हो सकता है अर्ली ह्यूमन बीइंग ने ऑब्जर्व किया ये जो वुड है भले इसका वेट बहुत ज्यादा है, इज इट क्लियर, उसने ये ऑब्जर्व किया होगा कि द वेट ऑफ द वुड इज वेरी हैवी बट व्हेन इट फॉल्स इन द वाटर इट स्टार्ट फ्लोटिंग। सो वहां से उसे ये समझ में आया होगा कि ये जो ट्रीज होते हैं, इनके बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, इनके ट्रंक्स जो हैं, इनके जो वुड है भले कितने हैवी होते हैं बट इन द वाटर दे कैन फ्लोट इजिली। सो इन द ओल्ड टाइम maybe they move from one place to another in the water with the help with the use of using logs of wood, बहुत से logs of wood को इकट्ठे बांध दिया, इस तरह logs of wood बनाए उन्होंने, ठीक है, या तो फिर small boats on water, ठीक है। nowadays अब देखो क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो हमारी अर्थ है, ब्लू प्लेनेट भी अर्थ को बोला जाता है, तो वाई वी से अर्थ एज ए ब्लू प्लेनेट बिकॉज व्हेन यू सी द मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, जब आप अर्थ का मॉडल देखोगे, स्पेशली ये दिस मॉडल इज प्रेजेंट इन द स्कूल लाइब्रेरी आल्सो, ओके, सो इन दैट मॉडल यू विल ऑब्जर्व दैट द लैंड कहाँ है, लैंड के टुकड़े कहीं कहीं हैं, और मैक्सिमम वो ग्लोब आप टर्न करके देखोगे इट कलर्स, मैक्सिमम कलर जो आपको दिखेगा उन ग्लोब्स में दैट इज ब्लू कलर, ओके, दैट इज अ ब्लू कलर। so it means between this land you will see water, okay, between the ये जो जमीन के जो, जैसे हमने एक चैप्टर में पढ़ा था ना कॉन्टिनेंट, 7 बड़े बड़े जमीन के ह्यूज मासेस ऑफ लैंड है, तो ये 7 के 7 लैंड आपस में, ये नहीं कि 7 के 7 लैंड्स आपस में बिल्कुल ज्वाइन है, नहीं, इनके बीच में क्या है, वाटर है, इज इट क्लियर, इनके बीच में क्या है, वाटर है। जैसे हम लोग इंडिया, तो हम किस कॉन्टिनेंट के पार्ट आते हैं, एशिया, और एशिया कॉन्टिनेंट ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो ये 7 पीसेस ऑफ ह्यूज मासेस ऑफ लैंड है ना, उसमें सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सो इनके बीच में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है, तो दैट इज द रीजन, जो वाटर है आपका ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, और फॉर एग्जाम्पल देखो बाई द वाटर ट्रांसपोर्ट, जो वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं, देखो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, आज तो साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, ठीक है, अब हमको पता है कि इंडिया हमारी कंट्री यहाँ है, चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, जापान है, आज तो ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, हाउ वी आर एबल टू फाइंड दीज कंट्री बाय द वाटर वेज, ठीक है, ये जो डिफरेंट कंट्रीज की जो डिस्कवरी हुई है, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं इनकी बेटा जो डिस्कवरी हुई है दैट इज ड्यू टू द वाटर वेज, ठीक है, शिप से सेलर्स वाटर में, शिप्स के थ्रू वो लोग आते रहे वाटर वेज की तरह, कहीं ना कहीं चलते रहे कंटिन्यू, कहीं ना कहीं उन्हें लैंड का टुकड़ा मिला, ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट कंट्रीज की जो डिस्कवरीज हुई हैं दैट इज आल्सो थ्रू द वाटर वेज, दैट इज आल्सो थ्रू द वाटर वेज, डिफरेंट कंट्रीज की जो डिस्कवरी हुई है, क्योंकि लोग सेल करके चले आए, शिप पे चलते रहे, कंटिन्यूस वो लोग चलते रहे, बहुत जर्नी करने के बाद कहीं हो सकता है उनको लैंड मिला हो, तो इस तरह वाटर वेज के थ्रू वी आर एबल टू डिस्कवर द मेनी कंट्रीज, वाटर वे ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने बहुत से कंट्रीज की क्या की बेटा, हमने डिस्कवरी की। और अब देखो 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज द लैंड है, ट्रेन है, सॉरी लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे व्हेन इन द स्टार्टिंग ऑफ द air transport I explained you air is the quickest mean of a transport, but what is the disadvantage of air transport, that it is very expensive, okay, you have to pay more money for that, expensive means we have to spend more money if we want to go from any part of the country or in other countries, so we have to spend more money if we go by
air transport. Okay, in the same manner, now the question arises, out of these three means of transport, which is the cheapest mean of transport? So the answer will be water transport. Cheapest means of transport, that is here answer is water transport. Cheapest mean of transport, that is water transport. Now what is the reason for that? Let's start with the land transport. Land transport is divided into two parts, that is the roadways, means the vehicle which are moving on the road, and another one is the railways, means the vehicle which are moving on the tracks. So for making the roads, for making the bridges, we have to spend a lot of money. जितने भी व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं, तो इन रोड्स को बिल्ड करने के लिए, उन रोड्स को रिपेयर करने के लिए, आप लोग देखते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ टाइम सेव करने के लिए ब्रिजेस भी आपको देखने के लिए मिलते होंगे. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सी मनी स्पेंड होती है. ठीक है, इन द सेम मैनर अगर आप रेलवेज की बात करो, फ्रॉम वेयर यू कैच द ट्रेन, वी कैच द ट्रेन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन बनाने में भी बहुत मनी लगती है, और द व्हीकल्स विच आर मूविंग ऑन द ट्रैक्स, इन ट्रैक्स को भी बनाने में बहुत मनी लगती है. ठीक है, इन द सेम मैनर अब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन तो एयर पे ही उड़ता है. ठीक है, हवा में उसको कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन बिफोर टेकिंग द फ्लाइट एयरपोर्ट बनाना पड़ता है. बहुत लंबा रनवे होता है जिसपे एक हाई स्पीड से एरोप्लेन मूव करता है, देन इट टेक द फ्लाइट. ठीक है, तो उस पर भी बहुत ज्यादा मनी स्पेंड होती है. और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो वाटर तो ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्स है विच इज प्रेजेंट ऑन आवर प्लेनेट अर्थ. ओके, अब वाटर ट्रांसपोर्ट मीन शिप है, बोट है, सबमेरिन्स हैं, वाटर में चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं, क्या इनके लिए हमें वाटर कहीं से खरीदना पड़ रहा है? तो आंसर इज नो, बिकॉज वाटर इज द नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन आवर प्लेनेट. तो हमें वाटर को कॉस्ट से खरीदना नहीं पड़ रहा है. दैट इज द रीजन वाटर ट्रांसपोर्ट जो है आपका बेटा, दिस इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, अब नाउ वी डिस्कस नेम ऑफ फ्यू vehicles which are moving water transport. Nowadays अगर हम लोग बात करें, nowadays मीन प्रेजेंट टाइम में, so people use what are the things, what are the example of water transport, that is ships. ठीक है, ships हैं, boats हैं, स्पेशली रिवर्स में, रिवर वाले वाटर में स्पेशली मैक्सिमम आपको बोट्स देखने को मिल जाएंगी, जहां जहां भी रिवर्स हैं. शिप्स है, बोट्स है, राफ्ट हैं, एंड स्टीमर्स भी हैं. ठीक है, स्टीमर्स हैं, और इनमें जैसे मशीन्स होती है ना बेटा, आप बाइक चलाते हो या कुछ चलाते हो, तो आप इंजन आपका वर्कआउट करता रहता है, आप हैंडल को कंट्रोल किए रहते हो, एक्सीलेटर लेते रहते हो. तो इन द सेम मैनर स्टीमर्स में भी मशीनें लगी हैं. ठीक है, सो स्टीमर मूव वेरी इजिली ऑन द वाटर. ठीक है, तो दीज आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द व्हीकल्स विच आर यूज इन द वाटर ट्रांसपोर्ट्स. ओके, अब जब हम लोग शिप्स की बात करेंगे, तो ये शिप बहुत ह्यूज होते हैं. शिप जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं. जैसे ट्रेन में 1000 एंड अबव पीपल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, इन द सेम मैनर शिप में भी एट ए टाइम 1000 से ऊपर पैसेंजर मूव कर सकते हैं शिप में. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अपने देश से दूसरे देश को हम लोग बेचते हैं. ठीक है,
और बहुत सी चीज़ें उनसे हम लोग खरीदते भी हैं। तो ये मैक्सिमम चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट के होके आ रही हैं, इंपोर्ट हो रहा है और उनका एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम चीज़ें किसके थ्रू आ रही हैं? आपके वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि रेलवेज आपके देश में चल रही है, इसी तरह हर कंट्री की अपनी रेलवेज है, सब कंट्रीज के अपने अपने रोडवेज हैं। ओके, हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए एयर ट्रांसपोर्ट एंड विद द हेल्प ऑफ ए वाटर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट से ज्यादा हैवी चीजें नहीं कैरी की जा सकती, एज यू नो कि एयर ट्रांसपोर्ट से बहुत ज्यादा हैवी चीजें कैरी करके नहीं लाई जा सकती। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार जो हो रहा है, सबसे ज्यादा जो ट्रेड हो रहा है, वी आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो, और वी आर सेंड थिंग्स फ्रॉम आवर कंट्री आल्सो टू द अदर कंट्रीज। सो ये जो काम सबसे ज्यादा हो रहा है, दैट इज ड्यू टू योर वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बिकॉज वाटर ट्रांसपोर्ट्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स, गुड्स, ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अनाज है, खाने की चीजें हैं, और भी गुड्स में कुछ भी सामान हो सकता है, दूसरे सामान भी होते हैं डेली यूज वाले, वो भी हो सकते हैं। और ऑयल के जो बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं, ऑयल टैंकर्स, ये सब के सब कैसे आते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना बेटा, भी जैसे इंडिया का अपना रेलवेज होगा, अदर कंट्रीज से उनके भी अपने रेलवेज होंगे जो उसी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जाते होंगे। ठीक है, तो अदर कंट्री से अगर हमें कोई सामान लेना है और वी हैव टू सेंड आवर गुड्स इन अदर कंट्री, सो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू द वाटर ट्रांसपोर्ट एंड दीज शिप्स आर वेरी ह्यूज। ये जो शिप्स होती हैं बेटा, ये बहुत बड़ी होती हैं। स्पेशली ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग कौन सी शिप यूज करते हैं? दैट नेम ऑफ द शिप इज द कार्गो शिप्स। स्पेशली हम लोग कौन सी शिप्स यूज करते हैं? द नेम ऑफ द शिप इज कार्गो शिप्स है। ठीक है, हम लोग कार्गो शिप्स का क्या यूज करते हैं? टू कैरी द ग्रेन, गुड्स एंड ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और दिस सबमेरिन्स, जिससे हिंदी में आप पनडुब्बी बोलते हो, ये पानी के अंदर चलती है। जैसे शिप आपको पानी के ऊपर देखेगी, बोट्स ऊपर देखेगी, स्टीमर देखेंगे, ये पानी के अंदर अंदर चलते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली दिस सबमेरीन इज यूज बाय द नेवी। ठीक है, अगर आप लोग ने देखो, हमारे जो कंट्री की जो फोर्सेस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी। ठीक है, तो नेवी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां हमारी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, बहुत से देश ऐसे हैं जहां हमारी लैंड बाउंड्री है, तो वहां पे आर्मी वर्कआउट करती है। ठीक है, बहुत से जगह ऐसी भी हैं जहां पे हमारी लैंड बाउंड्री ना होके वाटर बाउंड्री है, मतलब दूसरे देश से हम कैसे कनेक्टेड हैं? ड्यू टू द वाटर। तो वहां पे भी प्रोटेक्शन की जरूरत है कि वाटर वेज से कोई दूसरे देश के लोग आपके देश में ना आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोटेक्शन करना है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। तो इस आर्मी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो वाटर वेज से, वाटर के रास्ते से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज नेवी। दैट इज नोन एज नेवी। That is known as Navy. So this submarine जो अभी हमने आपको डिस्कस किया, पनडुब्बी जैसे बोलते हैं, पानी के अंदर चलती है, ये ऊपर नहीं दिखाई देती। ये जो सबमरीन है, ये जो सबमरीन है, दिस इज यूज्ड बाय द नेवी। दिस इज यूज्ड बाय द नेवी टू प्रोटेक्ट द सीज। क्योंकि मैंने बताया ना कि देयर आर मेनी कंट्री बाई विच वी हैविंग अ लैंड बाउंड्री। ठीक है, जहां बॉर्डर्स हैं आपस में, जो लैंड बाउंड्रीज हैं वो क्या लैंड बाउंड्रीज हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके संग हमारी सी वाटर होता है ना, सी वाटर के थ्रू बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ भी हमें अपनी कंट्री को क्या है, दूसरे कंट्री से क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्री। सो दिस
submarine travels underwater and the navy use it to protect the sea. Now if the question come, who protect the seas? So answer is navy. Thank you student.